है, ठीक है। तो जो पढ़ा रही हूँ टीचर, अपने बच्चों को सिखाती हूँ ऑनेस्टी करिए, और सबसे ज्यादा डिसऑनेस्टी मैंने खुद की है सर इन 8-10 सालों में। नहीं मुझे, हाँ नहीं, आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट जी। और ये एक्चुअली बहुत पर्सनल सा हो रहा है, आई थिंक और लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं, बट मैं आपको यही सलाह, जैसे कि आपने अगर उनकी जीवनी लिखी है दिलीप साहब की, या कोई और स्क्रिप्ट, जैसे कि मैं इनसे भी कह रहा था कि यू हैव टू राइट योर ओन स्क्रिप्ट एंड पिच इट अराउंड, आई नो नो अदर वे, and if there is a bias for people who are starting out against, which works against them, then that is applicable to everyone, man. You know, you've got to cross that bridge somehow. वो तो मुझे नहीं पता. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. I wish you all the best. हेलो इम्तियाज सर, माय नेम इज़ गौरव सर। जैसे बिलीव की बात अभी हो रही थी, सो एवरीवन थिंक्स अबाउट ड्रीमिंग समथिंग, so at what age it just comes to your mind that you want to be a director or you want to work with the good artists in the industry? So what was, when was the first memory you have when you decided that I think this is the thing I can do in my life? See, I never really, since I'm from a small town, and since I had never even met anybody who'd been to a film shoot in my life, before I actually landed up in Bombay, I never really told myself that I will be one day in the film industry. I never had that clear-cut dream. There were some times when you do fanciful thinking. That has been not only for the film industry, but also about being a fighter pilot or a secret agent or a farmer. But on a serious note, never. What I did is that I used to write poetry in English. Then when I got the chance, I made small skits for my classroom, for my school plays, and then I joined theatre because that was the only means of storytelling through people that was available to me. And I did that. So whatever was available, I did till I landed up in Bombay. The reason I came to Bombay was actually to learn advertising and marketing so that I could get a job. And as I was saying, that it is more a sign of my failures that I actually became a film director. I never got a job in advertising. I really struggled for it, but never got it. And Avijit is here. Oh, he's run away. So you would remember that I was trying to get a job in advertising, and Avi and I were in class together, and both of us were in advertising. He got a job, I didn't, and so that also then pushed me towards the job that was available. And it is not really that I conceived a clear-cut ambition or a dream to be a film director. It was before that I actually became a film director. माइक आप आगे दे देंगे. इम्तियाज भाई, मेरा नाम साक्षात बसीन है, मैं शायर, गीतकार और एक्टर हूँ. आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी मेरी, और बहुत अच्छा लगता है आपको देखता हूँ तो. मेरा एक शेर है, ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल को जहां में खुलकर महकना चाहिए. आपके लिए है मेरा शेर, लेकिन आपने शाहरुख के मामले में कुछ ज्यादा ही बटर लगाया है, ऐसा मैंने फील किया. 50 नंबर देने चाहिए थे, आपने 100 नंबर दिए. अब आप बताइए, कि मैं भी जानता हूँ कि मैं बड़ा ईमानदार राइटर हूँ. मैं आपने कहा था कि मेरा एक राइटर है, लिरिक्स राइटर, जो क्या नाम है, इरशाद भाई. तो उससे मौका नहीं मिला. मैं कहता एक मौका तो दीजिए. 2 साल हो गया, आपका जवाब भी नहीं आया. मैंने नंबर भी दिया था. नहीं, आप बहुत ईमानदार है. आज मैं सामने बात हो रही है, साक्षात बसीन. तो मैं इतना ईमानदार नहीं हूँ, मैं बहुत चापलूस टाइप का आदमी हूँ. ऐसे अक्सर लोगों को बंधन लगाता हूँ. नहीं, मैं हूँ ऐसा, मेरी कमजोरी है. सॉरी, मैंने साफ बोल दिया, मैं बड़ा बिंदास हूँ इसलिए. नहीं, मैं मगर बहुत ही दूसरे टाइप. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. इम्तियाज सर, बेसिकली अगर देखा जाए ओवरऑल, एक फिल्म मेकर का अच्छा होना, क्या ये उसके लिए बर्डन बन जाता है, या उसके लिए ये उसे झेलना पड़ता है? क्या है ये? मतलब एक लाइन में अगर हम इस चैप्टर को फिनिश करना चाहें, इफ समवन इज डूइंग गुड, देन पीपल आर गोइंग टू चेज हिम. यू गुड, पीपल आर चेजिंग यू.
बट क्या वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतनी बड़ी दुनिया के हर आदमी को जवाब दे पाना और हर आदमी को सेटिस्फाई कर पाना? See, one thing I can tell you, Pankaj, कि if you achieve any kind of success, small or big, your responsibilities will increase, Yeah. and you will not even be able to explain to anybody else your compulsions or your point of view. Right? तुमने खुद नोटिस किया होगा. जी. You are a successful radio jockey. You do many things. You are a musician. इन छोटी छोटी चीजों की वजह से तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, आरजेस बनना चाहते हैं, आरजे शो बनना करना चाहते हैं, तुमसे एडवाइस लेते हैं. अक्सर तुम्हारे पास कुछ बोलने को होता नहीं है, तो झूठ तुम बोलना नहीं चाहते, जी. पर तुमको ये चीज मैनेज करनी पड़ती होगी. जी जी. अब ऑब्वियसली जो जितना ज्यादा सक्सेसफुल है या जितने ज्यादा लोग उससे मिलने को आते हैं, उसको उतना ज्यादा हैंडल करना पड़ता है. जी. मगर ये उसका मतलब इट्स हिज प्रेरोगेटिव. ही हैज टू डू इट, ही हैज टू हैंडल इट. ओके. And I guess you cannot, once you can not choose only the good things in a journey. You'll have to take everything. जी. So also you should, as I was saying, that you have to reach some sort of a successful position, you need more humility. You've got to be more humble than a normal man. Absolutely. So those things actually also you learn along the way. With time. जी. What's in the store next? अब क्या आने वाला है? लैला मजनू एक फिल्म आने वाली है, उसके अलावा लव इन टोक्यो आने वाली है. उसके लिए आपको आई थिंक यू वर लुकिंग फॉर अ जापानीज एक्ट्रेस, आई थिंक वो मिल गई हैं. क्या आने वाला है इम्तियाज अली की तरफ से? As far as Love in Tokyo is concerned, it is we have developed the story and kept on the side. In the meantime, Laila Majnu, which is a film directed by my brother Sajid, is going to come on and release in the coming months. And it is actually very exciting because it is the original Laila Majnu story based in Kashmir, in the contemporary Kashmir. So it's a very unique story. Whenever you tell a story of Laila Majnu, it will always be unique. So I'm looking forward to that, and I've been working quite a lot on that. बहुत ही अच्छे. आपकी जो बेटी है उन्होंने भी एक फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म लगी, मैंने पर्सनली देखी और बहुत वायरल भी हुई है, लोगों ने बहुत शेयर किया उसको. सो एक घर में ही इम्तियाज अली हैं और उसी घर में उनकी बेटी भी एक फिल्म लिख रही है, इदा नाम है उनका, राइट? शी इज राइटिंग. सो कितना आपसे कितना पूछती हैं, या आप कितना बताते हैं उन्हें, या बिल्कुल अलग अलग कैसे करते हैं आप? जब उसने मुझसे कहा था कि वो ये फिल्म बनाना चाहती है, तो हम लोग दोनों की ये बहुत क्लियर बात हो गई थी कि मैं एकदम उसको हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि चाहे लोगों को ये लगे कि मैंने उसको हेल्प किया होगा या नहीं किया होगा, उसको और मुझे पता होना चाहिए कि वो कितना अच्छा कर रही है. क्या बात. जिंदगी बहुत लंबी होती है और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. जी. उसमें सीखने का जो ऑप्शन है तब वो तभी होता है ना जब इंसान को खुद क्लियरली पता हो कि उसने मिस्टेक्स कौन से किए हैं. तो उसका ये पता होना बहुत जरूरी था. आई डिड नॉट हेल्प हर एट ऑल इन एनीथिंग, नॉट इवन वन सजेशन. सो शी आई एम श्योर लर्नड ऑन द वे, एंड जो भी उसने किया है या जो आगे भी करेगी वो अपने दम पर करेगी. पर ऐसा नहीं है जैसे घर पे एक इंजीनियर होते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए कहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कहते हैं कि फिल्म मेकर? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं. कुछ भी? आई थिंक फिल्म मेकर लोग अपने इंटरेस्ट से ही बन सकते हैं और किसी के कहने से नहीं बन सकते. तो उसने रियलाइज किया कि उसको ये फिल्म बनानी है, तो उसने बनाया. उसके पहले भी वो बहुत कहानियां लिखती रहती थी. सो वो अपने इंटरेस्ट से ही कर रही है. क्या बात है. आज की शाम के लिए आखिरी सवाल इम्तियाज सर, जैसा कि हमने यहाँ पे भी उसके थोड़े थोड़े शेड देखे उस सवाल के, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, जो कल के इम्तियाज अली, कल के अनुराग कश्यप, कल के दिवाकर बनर्जी बनना चाहते हैं, उनके लिए अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग द यूट्यूब इंटरव्यूज, अपार्ट फ्रॉम having a chai at a nukkad and thinking I will be Imtiaz Ali one day, because there is a lot of thinking, then I mean in my experience सोच ज़्यादा चलती है, मतलब काम कम होता है उस तरफ. क्या है मतलब आपके हिसाब से एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर को क्या करना चाहिए
अगर वो फिल्म मेकर है तो दो सवाल होते हैं इसमें भी, आपको नहीं पता आप फिल्म मेकर हैं, आप कोशिश करते रहते हैं, करते करते आप कुछ और मिल जाता है, आपकी अच्छी नौकरी लग जाती है, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिल्म इतनी पीछे छूट जाती है आपको पता भी नहीं चलता, एंड यू आर हैप्पी वेयर एवर यू आर. बट इफ यू एक्चुअली आर अ फिल्म मेकर, देन आपको राइट डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? See, firstly, I feel that if somebody is really a filmmaker, he will find his place. I have no advice to give to a person who is actually a filmmaker. Nothing can stop him. He himself cannot stop himself, I think. तो वो कहीं भी होगा, चाहे कि नुक्कड़ पे होगा, चाहे वो कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर बनना चाहे या ना बनना चाहे, वो बन जाएगा, वो डायरेक्टर बन जाएगा, फिल्म मेकर बन जाएगा. करेक्ट. बट एक दो चीज़ें जो मैं कह सकता हूँ वो ये कि कीप कनेक्टिंग, कीप योर कनेक्शन विद लाइफ ऑन. एंड अगर कुछ करना चाहते हैं तो राइट एज मच एज यू कैन एंड डू either theater or short film making or digital film making or phone camera filmmaking, whatever it is that is available to you. Don't think it is small. You should do it as much as you can so that you learn from yourself, because as I said sometime earlier, you are the only person you can learn from. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much, Pankaj. Thank you so much, everyone. Thanks to everybody. Thanks for coming here. And I'm sorry that if I have not answered any question successfully. But thank you very much all for coming here. Thank you so much. 2 awards हैं इम्तियाज, हमें 2 awards देने हैं. Ladies and gentlemen, that was Pankaj, our moderator. If you like that session, he's the man. Thank you so much, sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Imtiaz Ali. Thank you so much, sir. So we have a few awards that we'd like to hand out. Would you want to stick around for that, Pankaj? Yeah? All right, thank you. So, ladies and gentlemen, before I get to that awards, I also have a quick question, sir, since I was listening and I could not really get a chance. So, I see a lot of your characters dabbling with, the darker side of the society and the aspects of it, and probably the side that they don't know about themselves, probably a side that they don't really understand about themselves. So, the question is, if anybody, for example, all these young kids with the exams coming in and, a lot of pressure and everything else,